Okay, you've already talked about Unit 1, in which you have understood what is discipline and what is subject. So can you share with me what you mean by subject and what you mean by discipline? Can you segregate? उसको separate कर सकते हो या एक ही है दोनों? Yes, we can segregate. ठीक है, discipline क्या है वो बता दो. हाँ हाँ बोलो. I'm listening. I'm listening. Okay, okay. और क्या है expressions? Discipline is a detailed subject. This is Mariam. Ma'am, discipline is broader term. Okay. फर्स्ट किसने को बोला था कि सब्जेक्ट के पार्ट होता है डिसिप्लिन? डिसिप्लिन इज सुपरसेट ऑफ सब्जेक्ट. आप मैथ्स के हो क्या? डिसिप्लिन इज सुपरसेट ऑफ या फिर सब्जेक्ट इज सबसेट? सब्जेक्ट इज अ सबसेट. यस. हां, वाइस वर्सा. Okay. Ma'am, discipline is one step ahead of subjects. It has a specific body of language, then its own methodology to generate knowledge, and has its own terms and definitions. Okay, subject doesn't have? Ma'am, it have, but it's a narrower term, but discipline is a broader term. Okay, okay, fine. और किसी को कुछ बोलना है? Subject does not generate knowledge, but yes, discipline do generate knowledge, and which we can put it into subject. Okay, subject can draw the knowledge generated by discipline and put them into you can teach that. मतलब subject is outlining the things that you want to draw from the discipline and teach the students. ऐसा कुछ? मतलब डिसिप्लिन ने बहुत सारा नॉलेज गैदर कर लिया, अब उसमें से कुछ चीजें किसी को पढ़ानी है तो सब्जेक्ट उसमें से ड्रॉ कर लेगा कि मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ाना है, ऐसा कुछ? यस मैम. लिमिटेशंस होती है मैम सब्जेक्ट में, whereas डिसिप्लिन में there is no fixed like boundary or limitations. Yeah, research work are actually more specific. Okay, subjects are more specific. Okay. Yes. What do you mean by specific? Ma'am, specific means it includes a specific topic, not so many topics. Okay. As per age, ma'am. As per the children's learning age, so वो specific level of the children. As per the level of the children, subject will have specific topics to be taught. But discipline is not like that. It is open to anyone and everyone to read and understand. Is it so? Yes. And to expand as well. Ma'am, Okay. Ma'am, likewise, some subjects take a form of discipline, but not all the subjects are discipline. Is it? Then give me an example. Mathematics. Okay. Good. Right. Ma'am, can that discipline is a lifelong process? Okay, is it a process? Ma'am, basically it is related to research Can we say field. that, So ma'am? in that context, she's saying lifelong process. Okay. Okay. Understanding a discipline may go on for a lifelong, as a lifelong process, understanding a discipline. While a subject can be taught or can be learned within a stipulated period of time. I think you want to say this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Generally, So, discipline what are is your taught in universities. Yes. Disciplines are taught generally in universities and college, while subjects are taught in schools. Okay. Maybe. Okay. Yeah, usually because they have a broader perspective, and to understand the broader perspective, a child has to grow up to an adult. Either should be in a college or a university, so that he or she can, learn with those perspectives which are there in the discipline. When the child is small, उनका cognition या उनका understanding भी इतना नहीं होता है कि वो लोग इतना broad चीजों को समझ सके.
इसीलिए यूजुअली वो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाया जाता है। एक्चुअली उसका अप्रोच वैसा होता है। अप्रोच मतलब जिस तरीके से आप उसको पढ़ाते हो, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में थोड़ा रिसर्च वाला टच भी देकर पढ़ाते हैं, ताकि आगे, और देखो रिसर्च पढ़ाने से क्या होता है, किसी भी सब्जेक्ट में और ज्यादा रिसर्च होगी उस फील्ड में, और फिर उसमें और ज्यादा बॉडी ऑफ नॉलेज ज्वाइन होगा और नॉलेज जनरेट होगा, ठीक है। जबकि स्कूल में जनरेशन ऑफ नॉलेज एम नहीं है, हमको सिर्फ उनको फैक्ट्स बताने हैं, उनको डिस्कवरीज के बारे में बताना है, और वो ह्यूमन लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है वो बताना है, ठीक है। मैं धीरे धीरे सोशल साइंस के अंदर चली गई। आप लोग बताओ कि आप सोशल साइंस से क्या मीन करते हो, और सोशल साइंस स्कूल में पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, वो सब बताओ। Yes, ma'am, it is taught in school. मैम सोशल साइंस पढ़ाते। सोशल साइंस नहीं पढ़ाते स्कूल में? मैम पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं मैम मैम। इट इज अ डिसिप्लिन। एनवायरनमेंट को जान सके, चलो सराउंडिंग को discipline और जान सब्जेक्ट सके को बाद अच्छे में से। रखते हैं। हम ये सोचते हैं कि सोशल साइंस को पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते स्कूल में। पढ़ाते हैं मैम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स। मैम ओके, मैम पढ़ाते सोशल हैं। साइंस पढ़ाते हैं या सोशल स्टडीज पढ़ाते हैं? स्टूडेंट सोशल स्टडीज। Social studies. Social studies. सोशल स्टडीज Social पढ़ाते हैं, ठीक है। studies. तो सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट और डिसिप्लिन कोई बोल रहा था कि हम लोग एज अ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, ठीक है। तो सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं स्कूल में। उसका जो एरिया होता है, एक्सटेंड होता है पढ़ाने का, वो बहुत लिमिटेड होता है। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जा रहा है। जैसे आप लोगों ने बोला कि सब्जेक्ट का जो कवरेज होता है या जो टॉपिक्स उसमें पढ़ाए जाते हैं वो इतने ब्रॉड नहीं होते हैं। वो इतने ही होते हैं कि वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में समझे और उसको वो लोग समझ के उसको शायद कोई टेस्ट या एग्जाम में लिख सके, ठीक है। लेकिन अगर उसको एज अ डिसिप्लिन पढ़ाना है सोशल साइंस को, then it should be having a broader perspective where the person can even go on for a future research in this area, ठीक है। तो I think you have a very fair understanding of what is subject and discipline. The only thing is आप लोग का पता नहीं किसका एक्सप्रेशन था कि सब्जेक्ट ब्रॉड होता है और डिसिप्लिन इज नैरोअर टर्म। It is the other way round. Discipline is a broader term. From there, you can draw out different subjects. Okay? ये हम कर सकते हैं। मैम जी बोलिए। मैम आई वांट टू आस्क समथिंग। मैम किसी ने अभी कहा डिसिप्लिन इज अ but- ब्रांच ऑफ। Who is this? I am not able to see because I am seeing my PPT. हेलो, Yeah. मे आई ऑडिबल मैम? Yeah, you are audible. Just let me know what is your name. प्रीति शर्मा हियर मैम। Yeah, Preeti, बोलो। Okay ma'am, somebody said that discipline is a branch of knowledge, but ma'am subject is also a branch of knowledge now. सी नॉलेज तो दोनों में है, सब्जेक्ट में भी है और डिसिप्लिन में भी है। सब्जेक्ट में But लिमिटेड generation of knowledge. नॉलेज होगा, और लिमिटेड मतलब एज यू सेड कि एज लेवल को रिलेटेड होगा कि ये वाले एज लेवल में ये वाला टॉपिक पढ़ाना है। फॉर एग्जांपल अगर बायोलॉजी पढ़ाना है तो एडोलेसेंट कैरेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में 9th में पढ़ाया जाता है, ठीक है। उससे पहले भी बॉडी पार्ट्स पढ़ाए जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाया जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाया जाता है। लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पढ़ाया जाता है, ये कभी कभी होता भी नहीं है छोटे क्लासेस में, ठीक है। क्योंकि एज हाँ, लेवल yes, ma'am. स्पेसिफिक हम लोग टॉपिक्स सिलेक्ट करते हैं। तो नॉलेज दोनों में होता है, लेकिन नॉलेज का जो एक्सपेंशन है या उसकी जो एक्सटेंट है, क्या बोलते हैं, लिमिट है, वो डिसिप्लिन में ज्यादा होती है और सब्जेक्ट में लिमिटेड Ma'am, होता है। discipline बस इतना has ही समझो। specific body of knowledge. Specific. Ma'am, I told specific, not branch of knowledge. It was specific body of knowledge. हाँ, डिसिप्लिन स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो अब ठीक है ना? ठीक है।
So now see, in this unit you have these 4 points which we have to learn. First is nature and philosophy of social sciences. The next is सॉरी social मैम बट पीपीटी नहीं दिख रहा है. बाकी सबको भी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। No, ma'am. सबसे बंद ही है मैम. हाँ मैम नहीं दिख तो रहा है। आप लोगों ने बोला क्यों नहीं कि बंद है? मुझे तो लगा कि आप लोग हमें बंद लगा कर- कि शेयर नहीं कर रहा है. सडनली चला गया, आपने मैं एक्सप्लेनेशन शेयर करना बंद करूंगी तब मैं आप लोगों को बोल दूंगी, ठीक है? Okay. ओके. आप देखो, Ma'am, is it unit 4? But mathematics के सर ने कहा था मैथमेटिक्स वाला भी यूनिट 4 था Yes. फिर। It नहीं can be seen, मैथमेटिक्स ma'am. वाला यूनिट 4 था क्या? ये यूनिट 4 है। हाँ, बट सब मैथमेटिक्स के सर ने यूनिट 4 कहा था मैम। Satish. मैम सिलेबस में यूनिट 5 है ये सोशल साइंस वाला। Am I audible to all of you? यस मैम। यस मैम। हाँ, ओके, Syllabus में वाला unit कौन सा 5 है, यूनिट है? ma'am. आप अपने सिलेबस में देख Unit लेना। 5 है, द सिलेबस ma'am. इज देयर ऑन द वेबसाइट। ओके मैम। तो मैम आपका यूनिट 5 है मींस। यूनिट 5 है? हाँ मैम। Yes, सर ma'am, का it is 4 unit है। 5. Mathematics Yes, is ma'am. unit 4. Yeah, okay, unit 5. I'm sorry about it. So let us see what is the content of the unit that we have to cover. One is nature and philosophy of social science. Next is social science as an area of study. The next is need of studying social sciences through interdisciplinary perspectives. And the fourth one is place and relevance of social science in school curriculum. ठीक है, ये सब चीजें हमको इस यूनिट में पढ़ना है। अब नेचर एंड फिलोसफी ऑफ सोशल साइंस जो है उसमें हम ये देख लेंगे कि सोशल साइंस का नेचर क्या है, मींस व्हाट आर द एक्सटेंट्स ऑफ इट एज अ डिसिप्लिन, एंड फिलोसफी, ये जो सोशल साइंस का क्या बोलते हैं हिस्ट्री है, ये जो इसका एवोल्यूशन है एज अ सोशल साइंस, इट इज समवेयर इन 12th क्या बोलते हैं 12th सेंचुरी में है, ठीक है, वहां से वो शुरू होता है। तो फिर इसीलिए हम लोग उसका एक हिस्ट्री देख लेंगे। और यूजुअली जब कोई भी चीज का उत्पत्ति होता है या स्टार्ट होता है तो क्या होता है कि वो फिलोसोफर्स पहले उसके बारे में बोलते हैं, फिर स्लोली देयर इज अ बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज डेवलप्ड बाय द फिलोसोफर्स, फिर धीरे धीरे उसमें रिसर्च होता है और उसके बाद देयर आर थ्योरीज एंड कॉन्सेप्ट्स दैट बिल्ड अप। ओके, so we will be discussing about that in this. Then social science as an area of study means we'll talk about some researches if they are there in the, and how they segregated into different disciplines. Social science itself also has सब डिसिप्लिन्स, ओके, उसके साथ दूसरे सब डिसिप्लिन्स हैं जिस जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, ठीक है, वो सब को भी हम लोग सोशल साइंस। देखो दो चीजें डिफरेंट है, ठीक है, ये जो सोशल साइंस और सोशल साइंसेस, ठीक है, दो अलग अलग टर्म्स हैं, सोशल साइंस एंड सोशल साइंसेस। जब हम सोशल साइंस की बात करते हैं तो हम लोग जो स्कूल में पढ़ाते हैं सोशल साइंस, एसएस जिसको बोलते हैं, वो उसकी बात करते हैं। लेकिन जब हम सोशल साइंसेस की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं, एक मिनट मैं आपको ये बताती हूँ। तो जब हम लोग सोशल साइंसेस की बात करते हैं, आर यू एबल टू सी द ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंसेस? मैंने भी यहाँ पे साइंस ही लिखा है, बट दीज आर द ब्रांचेस ऑफ सोशल साइंसेस। ओके, सो एंथ्रोपोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है। अब इसमें से ये सारे डिसिप्लिन्स हैं, ठीक है, अब इसमें से कुछ डिसिप्लिन्स को हम लोगों ने क्लब करके सोशल साइंस बना दिया स्कूल में पढ़ाने के लिए, ठीक है। सो आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर। Am I in? No one? Yes, ma'am. Yeah. यस मैम, यस मैम। अभी आप लोग Yes, ma'am. मैंने ये सिर्फ आप लोग को बताने के लिए बता दिया कि आप सोशल साइंसेज और सोशल साइंस का डिफरेंस, पर वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन, ठीक है। तो जैसे हिस्ट्री,
एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, वो सब कुछ जैसे एक डिसिप्लिन है, वैसे सोशल साइंस भी एक डिसिप्लिन है, ठीक है। तो कमिंग ऑन टू हाउ सोशल साइंस इज अ डिसिप्लिन, ठीक है, उसको डिसिप्लिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि उसका अपना एक हिस्ट्री है, ठीक है। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है ना किसी भी डिसिप्लिन का, कि उसका अपना एक हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट होता है, कि वो कैसे इवॉल्व हुआ स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है। फिर अ डिसिप्लिन हैज सर्टेन डोमेन्स ऑफ नॉलेज। आप लोग सब बोल रहे थे कि उसके पास नॉलेज का एक क्या बोलते हैं, इट विल बी हैविंग अ बॉडी ऑफ नॉलेज, देन ओनली इट इज अ डिसिप्लिन। सो सोशल साइंस इटसेल्फ also has a body of knowledge, and it is divided into 3 different domains. One is cognitive domain, affective, and psychomotor. Have you all learnt about what is cognitive domain, affective domain, and psychomotor domain? Yes, ma'am. So what is Yes, this? ma'am. ऐसा डोमेन करके कुछ देखो, दो चीजें होती हैं। एक चीज होता है कि फिजिकली कुछ एग्जिस्ट करता है, जैसे हमारी नाक है, आंख है, कान है, वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और दूसरा होता है कुछ मेटाफिजिकल या कुछ चीजें जिसको हम लोग, वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन वो अपना फंक्शनिंग करता है, जैसे हमारा ब्रेन में मेमोरी होती है, हम लोगों का लर्निंग होता है। अब हमको कितना लर्निंग हुआ है वो दिमाग में कहीं दिखेगा नहीं अगर किसी ने ब्रेन खोला तो, लेकिन हम लोगों को पता है कि वो एग्जिस्ट करता है हमारी ब्रेन में, कहाँ कैसे वो हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इट इज अनसीन, इट इज नॉट फिजिकल, ओके। तो ये जो डोमेन्स ऑफ नॉलेज है वो क्या फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते? अगर आप लोगों को लगे कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन है तो भी आप बोल सकते हो कि मैडम समझ नहीं आ रहा, यू कैन डू, प्लीज फील फ्री टू शेयर। मैम फिजिकली भी एग्जिस्ट करते हैं, नॉन फिजिकली भी एग्जिस्ट करते हैं, बोथ। ओके तो क्या है कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर? मैम कॉग्निटिव डोमेन इज मेनली रिलेटेड विद हेड। एक एक करके बोलोगे? मैम cognitive domain is basically related with head. Okay. Then psychomotor domain is related with hand and other movements which we make through body. And affective domain is related with feelings and emotions. So feelings and emotions cannot be, it is kind of non-physical. It can't be, we can't see it. Okay. So that is, yes, ma'am. And whereas head and other actions which we make through our body parts, that can be seen. But in brain also, the thoughts and emotions which we go through, that we cannot see. So it's kind of both. Yeah. Okay. This was just to evoke your consciousness. मैंने ये physical and non-physical वाला question पूछ लिया। As such आपको वो जानने की बहुत जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना जानना है कि a discipline has certain domains of knowledge. मतलब हर डिसिप्लिन के अंदर वैसे नॉलेजेस होते हैं जिससे हम लोगों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, मतलब लर्निंग एंड मेमोरी रिलेटेड थिंग्स, जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस, जैसे आपने बोला कि इट इज रिलेटेड टू हेड, मतलब हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस है, द प्रोसेस ऑफ हाउ वी लर्न, द प्रोसेस ऑफ हाउ वी रिमेंबर थिंग्स, ये सारी जो चीजें हैं उसको हम लोग कॉग्निटिव प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो हर एक डिसिप्लिन में ऐसा कुछ नॉलेज तो होता है जिसे हमें याद करना पड़ता है, जिसे हमें याद करके रख के कभी किसी को याद करके पढ़ाना पड़ता है, ऐसे बहुत सारा नॉलेज होता है, ठीक है, जो कॉग्निटिव है, और हमने उसको किस तरीके से लर्न किया है उसके बेसिस पे भी याद रहता है, ठीक है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं, ठीक है, उन लोगों को अगर कोई भी डेट्स हिस्ट्री में, सपोज हिस्ट्री में, ठीक है, सोशल साइंस का टॉपिक है इसलिए मैं हिस्ट्री का एग्जांपल देती हूँ। तो जैसे हिस्ट्री है उसमें कोई डेट्स याद रखनी है किसी वॉर वगैरह की, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको अपने बर्थ डेट के साथ या अपने पेरेंट्स या अपने घर के फैमिली मेंबर्स के जो बर्थ डेट है उसके साथ मैच करके कुछ भी ऐसे क्या बोलते हैं, मतलब उसको कुछ सिमिलैरिटी लाके कि ये इतने साल मेरे पापा के एज से इतने साल पुराना वाला है, ऐसा करके वो लोग कुछ मतलब ट्रिक्स बना लेते हैं ताकि उनको याद रहे कि सो एंड सो जो वॉर हुआ है या लड़ाई हुई थी वो मेरे पापा के बर्थ डेट से इतने साल पुरानी है,
तो वो डेट अगर पूछा गया एग्जाम में तो वो लोग तुरंत याद कर सकते हैं। ओके, तो दे आर एसोसिएटिंग थिंग्स एंड रिमेम्बरिंग थिंग्स। ठीक है, तो जब हम लोग लर्न करते हैं तो हमारे अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, मुझे ये जो पोएट्स और लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट होता था तब ऐसा होता था कि मैच द फॉलोइंग आता था एग्जाम में। तो उसमें ऐसा होता था कि जो पोएट्स के नाम हैं, फिर ये जो ऑथर्स के नाम हैं, ठीक है, गुजराती में सो एंड सो सब जो क्या बोलते हैं लेसन कौन से ऑथर ने लिखा, सो एंड सो पोयम कौन से ऑथर ने पोएट ने लिखा, वो सब का मैच द फॉलोइंग आता था। ठीक है, तो व्हाट माय फादर यूज्ड टू डू इज ही यूज्ड टू गिव मी एग्जांपल ऑफ नियर बाय पीपल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे नेबरहुड में कोई किशोर करके है और अगर पोएट का नाम भी किशोर से सुना शुरू होता है, देन ही यूज्ड टू टेल के किशोर अंकल एंड he will give me the name of the poem, so I remember in that way। ठीक है, तो हम कोई भी चीज को लर्न करते हैं जब भी, और उसको जो रिमेम्बर करने की प्रोसेस होती है हर एक दिमाग की और हर एक इंसान की अलग अलग होती है। ठीक है, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिया, एक तो ये पोएम पोएट्स और लेसन्स के जो ऑथर्स और पोएट्स है उसके नाम याद करने के, और दूसरा मैंने आपको एग्जाम्पल दिया हिस्ट्री वाला कि आप डेट किस तरीके से याद करते हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मतलब ट्रिक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं अपने जो नॉलेज को लर्न करने के लिए और रिमेम्बर करने के लिए। तो जो लर्निंग और रिमेम्बरिंग एंड जो रिमेम्बर किया है उसको वापस जब जरूरत है उसको रिट्राइव करने का जो प्रोसेस है, वो पूरा प्रोसेस जो है वो कॉग्निटिव होता है। ठीक है, तो हर एक डिसिप्लिन के पास ऐसा बहुत सारा नॉलेज है जिसको रिमेम्बर करना है, उसको समझना है, उसको समझ के फिर उसको कॉम्प्रीहेंड करना है। कॉम्प्रीहेंड करना है यानी कि बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ के फिर उसका एक समरी बनाना। ठीक है, ये सारी जो प्रोसेसेस हैं, ये सारे जो टॉपिक्स एक डिसिप्लिन देता है वो कॉग्निटिव डोमेन का नॉलेज बोला जाता है। ठीक है, फिर बहुत सारा ऐसा नॉलेज भी होता है डिसिप्लिन में जो हमारे अफेक्टिव डोमेन को भी अराउज करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हिस्ट्री में झांसी की रानी का अगर जिक्र आ गया, तो उनकी तो हस्बैंड भी नहीं थे और उनका बच्चा भी छोटा था, तो उसको अपने मतलब पीठ पे बांध के या उन्होंने लड़ाई की थी। ठीक है, तो दैट अराउजेस एन अफेक्टिव फीलिंग। आपको अंदर ऐसे फील होता है कि अरे मतलब सो ब्रेव शी वॉज, वो कितनी ब्रेव थी और करेजियस थी, डिटरमाइंड थी। तो ये सारे जो फीलिंग्स अराउज करता है कोई नॉलेज, वो भी एक डिसिप्लिन का पार्ट होता है। ठीक है, और दूसरा है साइकोमोटर नॉलेज। अब साइकोमोटर नॉलेज करके कुछ होता नहीं है, लेकिन अगर हम लोग उस जो भी डिसिप्लिन में नॉलेज बना है उसको सिखाने के लिए अगर हम लोग कुछ साइकोमोटर कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग सपोज आप ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और ज्योग्राफी में आप उन लोगों को वोल्केनो कैसे इरप्ट हुआ है वो दिखाना चाहते हैं, या फिर आप उनको बोलते हो कि जो स्टेप फार्मिंग होता है, स्टेप के ऊपर जहाँ पे वो होते हैं, क्या बोलते हैं, हिल्स होते हैं और माउंटेन्स होते हैं, वहां पे जगह नहीं होती जहाँ फार्म्स बना सके, तो वो लोग जो हिल्स होते हैं उसी को कट करके स्टेप्स बनाते हैं और उसके अंदर फार्मिंग करते हैं। तो अगर आप उनको स्टेप फार्म का मॉडल बनाने के लिए बोलते हैं तो उसमें उनके हाथ, दिमाग, उनके सेंसेस सब कुछ इन्वॉल्व होता है। तो दैट इज साइकोमोटर पार्ट ऑफ द नॉलेज। ठीक है, तो जो डिसिप्लिन में नॉलेज होता है वो ये जो तीनों डोमेन्स हैं हमारे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, ये तीनों जो डोमेन्स ऑफ लर्निंग है उसको वो अराउज करते हैं। ठीक है, अपने नॉलेज से, देन ओनली इट इज अ डिसिप्लिन। एज सच अगर सब्जेक्ट का भी नॉलेज है तो भी हम लोग ये सारी चीजों को अराउज कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ डिसिप्लिन में ही होता है। ठीक है, देन अ डिसिप्लिन शुड हैव सर्टेन ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च। जैसे आप सब बोल रहे थे कि डिसिप्लिन ब्रॉडर होता है, उसमें बहुत सारा रिसर्च होता है। अब रिसर्च करने की जरूरत क्या है? रिसर्च करने की जरूरत इसीलिए है क्योंकि रिसर्च करने से नए नए वो क्या बोलते हैं वो खुलते हैं, फील्ड्स खुलते हैं, उसमें और ज्यादा क्लैरिटी आती है। ठीक है, कोई भी डिसिप्लिन जब स्टार्ट होता है तब मैंने आपको बोला ना कि इट स्टार्ट्स विद द फिलॉसफी। अब फिलॉसफी क्या होता है कि मैंने कुछ सोच लिया कि सोशल साइंस तो ऐसा होता है, किसी और ने सोच लिया कि सोशल साइंस तो वैसा होता है। ठीक है, ये तो फिलॉसफी है, मेरी अपने दिमाग की उपज है। लेकिन एक्चुअली वो क्या है कब पता चलेगा? जब किसी चीज को हम लोग, जो मैंने सोचा है
कि जो मैंने सोचा है, सपोज सोशल साइंस तो इट इज अ रिलेशन बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स इन द सोसाइटी, ठीक है, सपोज ये मेरा फिलॉसफी है। अब अगर मैं उस चीज को बहुत सारा ऑब्जर्व करती हूँ उसके बाद, या फिर कोई और सोशल साइंटिस्ट ऑब्जर्व करता है कि यस रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स इन द सोसाइटी आर ऑल्सो डिफरेंट, और उन चीजों को भी हम लोग को लर्न करना चाहिए या हमको रिसर्च करना चाहिए कि अलग अलग लोगों के, फॉर एग्जाम्पल फादर एंड मदर का जो रिलेशनशिप है विद द चाइल्ड, या फिर चाइल्ड का जो अपने सिबलिंग्स के साथ, सिस्टर और ब्रदर के साथ जो रिलेशनशिप है, सारे रिलेशनशिप क्या एक जैसे होते हैं या अलग अलग होते हैं? ये रिलेशनशिप को अगर हमने रिसर्च किया और उसके बेसिस पे हमने कोई थियोरी डेवलप की, देन मेरा जो फिलॉसफी है कि सोशल साइंस इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग्स इन द सोसाइटी, वो सही है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप एग्जिस्ट करते हैं जिसको हमको स्टडी करना है और उसमें से थियोरी डेवलप करनी है, ठीक है। तो कोई भी डिसिप्लिन जो होता है उसमें एक ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मतलब बहुत सारे आइडियाज होते हैं जिसको हमें रिसर्च करके फिर उसके बेसिस पे थियोरीज बनानी होती है या फिर हमें कोई कॉन्सेप्ट्स बनाने होते हैं, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं है, अब सोशल साइंस ऐसा एक फील्ड है जिसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड हिज सराउंडिंग्स और हिज और हर सराउंडिंग्स। तो उसमें क्या होता है कि अब ह्यूमन बीइंग जो है उसके अंदर इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी आते हैं उसके लाइफ से रिलेटेड, फिर उसके लाइफ से रिलेटेड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आते हैं, उसके लाइफ के रिलेटेड हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी आते हैं। तो ये सब चीजें जब हम देखते हैं तो अगर पॉलिटिकल फैक्टर्स आते हैं तो हम सोचेंगे कि अरे ये तो पॉलिटिकल साइंस वाला टॉपिक हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग किसी भी एक इंसान को देखते हैं और उसके रिलेशनशिप विद हिज एनवायरनमेंट स्टडी करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे अलग अलग डिसिप्लिन के एस्पेक्ट स्टडी करने पड़ते हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि सोशल साइंस एज अ डिसिप्लिन हम जब देखें तो उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, रिसर्च के जो टॉपिक्स हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मतलब आइडियाज ऑफ रिसर्च, द आइडियाज विच कैन बी यूज्ड फॉर रिसर्च, ठीक है। तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि रिलेशनशिप बिटवीन मदर एंड फादर एंड द चाइल्ड, रिलेशनशिप बिटवीन द चाइल्ड एंड द सिबलिंग यानी भाई बहन के साथ जो रिलेशनशिप है, तो वो एक एरिया ऑफ आइडिया ऑफ रिसर्च हो सकता है कि कैसे ये जो रिलेशनशिप्स हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। तो ऐसे आप ह्यूमन बीइंग के रिलेटेड बहुत सारे ह्यूमन बीइंग और उसके सराउंडिंग एनवायरनमेंट के रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज निकाल सकते हो रिसर्च के लिए, या ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च निकाल सकते हो। तो वो अलग अलग डिसिप्लिन के साथ भी शेयर हो सकता है। जैसे अगर आपने ऐसा कोई टॉप आइडिया निकाला रिसर्च का कि एक जो एवरेज ह्यूमन बीइंग है वो अपना जो इनकम लाता है कमा के, वो किस तरीके से यूटिलाइज करता है अपने पूरे लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में, मतलब जब वो जवान होता है तब, फिर जब उसकी शादी हो जाती है तब, फिर जब वो बूढ़ा हो जाता है तब। तो अगर हम लोग इसकी स्टडी करें, इसको बहुत लॉन्गिट्यूडनल स्टडी बोलते हैं रिसर्च में, अगर हम इसकी स्टडी करेंगे तो एक्चुअली हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं, हम उस इंसान का सराउंडिंग के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हम उसके इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। उसके पास जो पैसा है उसको वो कैसे स्पेंड करता है अपने लाइफ के अलग अलग एराज में, वो हम स्टडी कर रहे हैं। इसीलिए ये जो आइडिया है रिसर्च का कि उस बंदे का क्या बोलते हैं, पैसे वो कैसे स्पेंड करता है ओवर हिज लाइफ टाइम, तो वो इकोनॉमिकल जो फील्ड है या इकोनॉमिक्स वाला जो डिसिप्लिन है उसके साथ भी वो शेयर होता है आइडिया, ठीक है। आई होप आई एम मेकिंग द थिंग्स क्लियर। आपको कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब उलझा हुआ चीजें हैं। यस मैम। एम आई मेकिंग द थिंग्स क्लियर? ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च अगर सोशल साइंस के डिसिप्लिन में है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिसर्च मतलब आइडिया ऑफ रिसर्च, ठीक है। कोई भी आइडिया है रिसर्च का, टॉपिक है रिसर्च का, तो वो हो सकता है कि दूसरे डिसिप्लिन के साथ भी उसका शेयरिंग हो सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज अ डिसिप्लिन हैज अ सब्सटैंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च, ठीक है। जो उन लोगों का बॉडी ऑफ नॉलेज आप लोगों ने बोल दिया है कि बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब क्या, कि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग रिसर्च करके उसके अंदर
बॉडी ऑफ नॉलेज या बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा किया है, ठीक है। अब आज देखो हम लोग सोशल साइंस के नाम पर स्कूल में हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पॉल साइंस या सिविक्स पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स के 1-2 चैप्टर्स होते हैं, ज्योग्राफी के चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो अगर आप थोड़ी देर के लिए एज अ टीचर ना सोचकर एज अ इंडिविजुअल सोचो और आप ये सोचो, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because my connection is showing weak. Okay. When I am not, then just give me a call. Okay, कोई कॉल कर देना या फिर मुझे बता देना, ठीक है। Okay. So a discipline has a substantial body of knowledge. मतलब उसके अंदर एक नॉलेज होता है, ठीक है। मैं ये बता रही थी आपको कि देखो हिस्ट्री जो है, अब जो वॉर्स हो गए सपोज, ठीक है, जो वॉर्स हो गए वो वॉर्स तो हो गए, लेकिन उसको इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में 9th के टेक्स्ट बुक में, 8th के टेक्स्ट बुक में, 10th के टेक्स्ट बुक में हम लोगों ने कितनी ऑर्गेनाइज्ड वे में रखा है पढ़ाने के लिए बच्चों को, ठीक है। तो बहुत सारा नॉलेज था बुक्स में, उसमें से हमने जो चाहिए वो उठा के जितना चाहिए उतना हमने लिख के टेक्स्ट बुक बना दिया, ठीक है। तो हम टेक्स्ट बुक कब बना सके सोशल साइंस का? तब बना सके जब हमारे पास बहुत सारे रेफरेंस बुक्स थे, ठीक है। और रेफरेंस बुक कहाँ से आए? जब बहुत सारे ऑथर्स ने उसके बारे में लिखा। ऑथर्स ने कब लिखा वो बहुत सारे रेफरेंस बुक्स? जब उनके पास रेफरेंस मटेरियल्स थे या उनके पास किसी के पास से गैदर किया हुआ नॉलेज था, ठीक है। जैसे हिस्ट्री के जो रेफरेंस बुक्स होते हैं, हो सकता है जो हिस्टोरियंस हैं वो लोग अलग अलग प्लेसेस में विजिट करें रिसर्च करने के लिए और वहाँ के जो लोकल्स हैं उनके बारे में पूछे, ठीक है। अगर जोधपुर का कोई वॉर हुआ है और वहाँ का कोई वो बुक लिखना चाहता है तो वहाँ जाकर जो पुराने लोग हैं उनके साथ बात करें, इंटरैक्ट करें, वहाँ पे जो चीजें पाई गई है उसके बारे में पढ़े और फिर उसके बाद वो बुक लिखे, ठीक है। तो तब जाके वो एक अच्छा रेफरेंस बुक बनता है और उस रेफरेंस बुक में से हम लोग अपना टेक्स्ट बुक बनाते हैं बच्चों को सोशल साइंस पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो वो जो रेफरेंस बुक है, इट इज अ सब्सटैंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज, राइट? डू यू अग्री विद मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes. So all the disciplines has substantial body of knowledge and research which is specific to it, ठीक है। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, रिसर्च विच इज स्पेसिफिक टू इट। तो अगर बंदे को किसी वॉर के बारे में लिखना है रेफरेंस बुक या फिर किसी स्पेसिफिक प्लेस, सपोज कोई गुजरात के बारे में लिखना चाहता है और गुजरात में क्या एजुकेशन कैसे ग्रो हुआ, या फिर वो जानना चाहते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वॉर्स हुए, वॉरियर्स कौन कौन थे, या फिर फ्रीडम फाइटर्स कौन थे। चलो फ्रीडम फाइटर्स कौन थे उसके बारे में अगर उन लोग को जानना है तो अभी उनके पास जो जो एविडेंसेस अवेलेबल हैं, पुराने कोई टेक्स्ट अवेलेबल होंगे वो पढ़ेंगे। फिर जिन फ्रीडम फाइटर्स के बारे में लिखना है जैसे सरदार पटेल है या गांधी जी हैं, तो वो जहाँ पर जन्मे थे वहां जाएंगे वो लोग रिसर्च करने के लिए। फिर वो जहाँ पर रहे थे वहां जाएंगे वो रिसर्च करने के लिए। फिर वहां से जो भी उनको मटेरियल मिलेगा उसको वो लोग कंसाइज करके वो लोग बुक लिखेंगे, ठीक है। तो रिसर्च तो उनको सब्सटैंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस करने के लिए करना पड़ता है। तो every discipline has a substantial body of knowledge, okay, and which is specific to it and not generally shared with another discipline, ठीक है। तो ये दूसरे डिसिप्लिन के साथ शेयर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर हिस्ट्री पे रेफरेंस बुक लिखा है किसी ने, सब्सटैंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज प्रोड्यूस किया है, तो वो आप इकोनॉमिक्स की बुक या किसी पॉल साइंस की बुक में से गैदर नहीं कर सकते, आपको उसी बुक में से या उसी बॉडी ऑफ नॉलेज से या डिसिप्लिन की बुक में से मिलेगा, ठीक है। Then discipline have theories and concepts and organize the accumulated knowledge effectively, ठीक है। अब क्या होता है theories and concept, आप क्या समझते हो इसके बारे में मुझे बताओ। Assumptions, ideas, ma'am. Okay, okay. Assumptions और ideas क्या है, concepts हैं? मैम आइडिया कॉन्सेप्ट्स हो जाएंगे और थियरी हमारे अजम्पशन के बेस पे हम लोग इंकल करते हैं। यस मैम। और कोई? Ma'am, theories are basically based on observations. Okay. Who is this? And when they are proved,
they become theories. Okay. In Okay. science field, basically, I'm talking about, ma'am. Yeah. Who is this one? May I know your name? Yeah, ma'am. This is Shobita. Okay, Shobita. Yeah. Theories are based on researches also, ma'am. Okay. Good. Anyone else? Theories are based on Empirical experimentation. understanding. Okay. Experimentation. Theories are based on experimentation. Theories are based on observation. Theories are based on अभी किसी ने कुछ बोला ना क्या था? Research. Research. और कुछ? Okay. Theory are You all are mainly right in based on saying this, ideas. okay? Yes. Theories are Someone was mainly saying based on something, I'm ideas getting and then hypotheses. Okay. Then? And if Ma'am, I have if those one question. hypotheses, Just a minute. Hold on with the question. Let him complete. yes, ma'am. Ma'am, if those hypotheses are proved, then they get converted into theories. Okay, good. Yes. What is the question? Doesn't research includes this hypothesis and experience and assumption? Yeah, it includes. Okay. Okay. Now see, what is a concept is it is a vocabulary. Okay, it is a vocabulary or it is a word given to certain idea or objects or to a process. Okay. If we talk about social science के concepts, अगर कोई भी idea है या कोई भी process है, objects हैं, उन चीजों को हम लोग एक टेक्निकल वोकैबुलरी दे देते हैं या नाम दे देते हैं, तो उसको हम कॉन्सेप्ट बोलते हैं. ठीक है. कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ एनी कॉन्सेप्ट? जैसे देखो स्टेप फार्मिंग इज अ कॉन्सेप्ट. ठीक है. वो स्टेप फार्मिंग क्योंकि स्टेप पे किया जाता है, स्टेप्स को कट करते हैं हिल्स में और फिर उसको किया जाता है, तो हमने उसको नाम दे दिया स्टेप फार्मिंग. ठीक है. कभी कभी कॉन्सेप्ट्स के नाम हम ग्रीक वर्ड्स या लैटिन वर्ड्स में से भी डिराइव करते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग वैसे वर्ड्स रखते हैं जिसका इंटरनल कोई मीनिंग हो. जैसे स्टेप फार्मिंग का मैंने एग्जांपल दे दिया. दूसरे कोई कॉन्सेप्ट का एग्जांपल दोगे? Water harvesting. यस. Water harvesting. आई एम नॉट एबल टू हियर यू. थोड़ा पास में रखो आपका माइक. Water Water harvesting, ma'am. harvesting. Water harvesting, yes. See, the word itself is showing कि water harvesting, harvest करना मतलब कि किसी चीज को grow करना. ठीक है. तो water को accumulate करके उसको grow करना as in plant की तरह grow करना नहीं, लेकिन उसको use करना for the future purposes. I think that is water harvesting, isn't it? Yeah. Yes. Okay. Yes. So Yes, coming on ma'am. to, so I think you've understood what is concept. ठीक है. किसी भी idea, object या process को हम लोग कोई technical vocabulary दे देते हैं जो world wide accept हो जाता है, उसको हम concept बोलते हैं. ठीक है. अब आते हैं theories पे. Theories क्या होती है कि हम लोग theories की बात करें तो जब आप में से कोई बोल रहा था कि हम लोग पहले कोई आइडिया होता है, उसको हाइपोथेसिस करते हैं और फिर उसको हम एक्सपेरिमेंट करते हैं. ठीक है. आपने अगर एक्सपेरिमेंटेशन बोला है, ऑब्जर्वेशन बोला है, रिसर्च बोला है, ऑल स्टैंड ट्रू. ठीक है. ये सब कुछ राइट है, एकदम राइट है. हाइपोथेसिस कर हम लोग ये करते हैं. तो सबसे पहले थ्योरी जब बननी होती है तो क्या होता है, वो फिलॉसफी से ही शुरू होती है. फिलॉसफी मतलब किसी का थॉट. ठीक है. किसी की आइडिया कि ये ऐसा हो सकता है. फिर उसके बाद वो हाइपोथेसाइज करते हैं. हाइपोथेसाइज मतलब वो लोग बोलते हैं अगर ये ऐसा होगा ना तो ही ये ऐसा होगा. ठीक है. सो लेट अस टेक एन एग्जांपल फ्रॉम सोशल साइंस. ठीक है. क्योंकि ये सोशल साइंस का वो है, इसीलिए देखो जो डार्विन है, आप डार्विन का सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का थ्योरी बता सकते हो मुझे? व्हाट डज डार्विन से सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब क्या होता है? साइंस के स्टूडेंट्स भी है ना यहाँ पे?
Ma'am, survival of the fittest. It is like the one who will adapt will survive. Is it Shobita again? Yes, ma'am. Okay, okay, continue. Ma'am, Darwin's theory basically focus on the adaptation process. The one who adapts to the changing environment is has very high chance of the survival. The one who is not able to adapt to the surrounding environment will perish soon. Okay. ओके, दिस इज डार्विन थियरी, ठीक है। डार्विन ने ऐसा बोला है अपनी थियरी में, उसने सडनली एक फाइन डे रात को सोकर उठ के ऐसा नहीं बोल दिया कि जो लोग जो एनिमल्स या जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सराउंडिंग के साथ अडेप्ट करेंगे तो जिएंगे, नहीं अडेप्ट करेंगे तो मर जाएंगे, ऐसा नहीं बोला, ठीक है। उसने कॉन्स्टेंटली बहुत सालों तक ऑब्जर्व किया, ठीक है, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उसने ऑब्जर्व किया कि जब सराउंडिंग में चेंजेस आती है, फॉर एग्जांपल अभी देखो ठंडी है तो हम लोग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, स्वेटर पहन लेते हैं, ब्लैंकेट पहन लेते हैं, ये ह्यूमन बींग्स की बात कर रही हूँ। ऐसे ऑर्गेनिजम्स यानी सभी चूहे, बिल्ली, फ्रॉग, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, पानी में रहते हैं, बाहर रहते हैं, सभी जंगल में रहते हैं, सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सराउंडिंग में जब चेंजेस आता है तो वो अपने बॉडी में या अपने लिविंग में अगर चेंजेस कर लिव कर लेते हैं तो वो फिट होता है और वो लिव कर लेता है, ठीक है। तो ये जो डार्विन का थियरी है उसको सुनकर एक दूसरे सोशियोलॉजिस्ट थे स्पेंसर करके, स्पेंसर ने ऐसा बोला कि जो फिटेस्ट है, देखो डार्विन के थियरी के हिसाब से क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है, ये सॉरी जो ऑर्गेनिज्म है वो एडेप्टेशन दिखाए, वो चेंजेस दिखाए अपनी बॉडी में, वो कुछ ऐसा करे कि वो सराउंड एनवायरनमेंट के चेंजेस के साथ फिट हो जाए, ठीक है। मतलब अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम बाकी सारे ऑर्गेनिज्म को छोड़ देते हैं, ठीक है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, अभी ठंडी है तो मैं ब्लैंकेट ओढ़कर अपने आप को ठंड से बचा लूं, गर्मी है तो मैं कॉटन के कपड़े या बहुत सारा पानी पीकर अपने आप को गर्मी से मतलब छुटकारा दिला दूं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ, सराउंडिंग में जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में उस हिसाब से मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ, ठीक है। तो डार्विन तो ये कहता था जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज करेगा वो फिट ऑर्गेनिज्म है और वो ही जिएगा। लेकिन जो स्पेंसर है उनका भी एक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का थियरी है। उन्होंने क्या बोला है पता है, द फिटेस्ट विल सर्वाइव इन द प्रोसेस व्हाइल द वीक विल बी एलिमिनेटेड एज अ नेचुरल प्रोसेस एंड इट इज बाय लॉ ऑफ नेचर। इसका मतलब ऐसा है कि स्पेंसर ऐसा मानते थे कि वो जो इंसान अडेप्ट करता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, नेचर किसको जिंदा रखना चाहता है या सराउंडिंग जिसको जिंदा रखना चाहता है वो जिंदा रहेगा और नेचर जिसको मार डालना चाहता है वो मर जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का थ्योरी है, ठीक है। इस बंदे ने भी बहुत सारा ऑब्जर्वेशन कर ये थ्योरी लेकर आए। अब किसको मानना ना मानना वो जो लर्न करता है या जो सिखाता है उस पर है, ठीक है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट डार्विन सेड एंड स्पेंसर सेड? हमारे लिए डार्विन और स्पेंसर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि थ्योरी कैसे डेवलप होती है, वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो डार्विन ने जहां बोला कि ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से जितना अडेप्ट करेगा वो जिंदा रहेगा, स्पेंसर ने उल्टा बोला, उसने बोला कि सराउंडिंग जिसको जिंदा रखना चाहता है वो जिंदा रहेगा और सराउंडिंग जिसको मार डालना चाहता है वो मर जाएगा। यानी इफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर वांट्स टू कीप द इंडिविजुअल अलाइव, द इंडिविजुअल विल सर्वाइव। इफ द surrounding doesn't want or the nature, law of nature doesn't want the individual to survive, the individual not survive, ठीक है। तो see, these are two different theories. How did they can I request you to mute your mic? Yeah, okay. So theories are developed first, सबसे पहले आइडिया आता है, डार्विन के दिमाग में भी पहले आइडिया ही आया था कि कौन जिंदा रहता है और कौन मर जाता है, क्यों लोग मर जाते हैं या क्यों ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया, जैसे आप लोग बता रहे थे ना ऑब्जर्वेशन करना, उन्होंने बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस किए और बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन ही रोट अ बिग थ्योरी एंड द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट थ्योरी वाज डेवलप्ड, ठीक है। तो
theories are principles that are based on observations and generalization. ठीक है, हम कोई चीज को generalize कब कर सकते हैं, हम कब बोल सकते हैं कि generalized है ये कोई भी चीज, जब बहुत सारे लोगों के अंदर या बहुत सारी चीजों के अंदर वो सिमिलर हो. ठीक है, बहुत सारे कंडीशंस में वो सिमिलर हो, तब जाके हम थियोरी डेवलप करते हैं. सपोज डार्विन ने सिर्फ अमेरिका में नहीं देखा होगा, डार्विन ने दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर भी देखा होगा कि कौन कौन लोग अपने आप को फिट रखते हैं या कौन कौन मर जाता है, कौन जिंदा रहता है. ये सब उसने अलग अलग जगहों पर जाकर देखा. ठीक है, ऑब्जर्व किया, उसके बाद उसने जनरलाइज किया कि जो भी ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग के चेंजेस के हिसाब से अडेप्ट करता है वो फिट है और वही जीता है, जिंदा रहता है, और बाकी सारे सराउंडिंग के हिसाब से जो चेंज नहीं होते वो बाकी सारे मर जाते हैं. ठीक है, तो जनरलाइजेशन करने के लिए हमें ऑब्जर्वेशंस बहुत अलग अलग जगह पर जाकर लेना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि बस बड़ौदा में बैठ के मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि भाई ये ऐसा होता है और मैंने थ्योरी बना दी. नो, यू हैव टू टेस्ट योर थ्योरी और योर हाइपोथेसिस ऑन डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट पीपल. वो डिपेंड करता है कि आपका थ्योरी किस पे है. ठीक है, आई थिंक आई हैव मेड माई सेल्फ क्लियर विद दिस एग्जाम्पल, या आप लोगों को कंफ्यूजन था. तो थ्योरी इज अ प्रिंसिपल which is usually accepted worldwide, okay, and it is based on, theory बनती कैसे है, it is based on observations and generalization. Okay, now if we talk about a theory in social science, then it is the principle which is accepted universally, formed based on observation and generalization of human behavior and human interaction. क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, social science as a discipline is the study of human relationship with his or her environment and his interaction with the fellow human beings. ठीक है, जो उनके आसपास जो human beings रहते हैं उसके साथ जो उसका interaction है, और उसका जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उसके साथ जो उसका इंटरेक्शन है, उसकी स्टडी को हम सोशल साइंस बोलते हैं. इसीलिए कोई भी सोशल साइंस थ्योरी जो होती है वो है अ प्रिंसिपल विच इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली based on observation and generalization of human behavior and human interaction with other human beings. ठीक है, I think I have made these things clear. ठीक है, समझ आ गया सबको या मैं निकल गई हूँ मीटिंग से? ठीक है, तो अब मानते हो कि सोशल साइंस इज अ डिसिप्लिन? Yes, ma'am. Okay, now let us see how social science is a subject. Are we falling short of time? हो गया है क्या हमारा क्लास? Yes. हाँ मैम. ठीक है, कुछ जो लोग हैं, हाँ जी, हाँ, कुछ जो लोग हैं जो बोलते हैं वही बोलते हैं, बाकी किसी के बारे में मुझे पता भी नहीं चलता कि उनको समझ आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है, कैसा है क्या है. तो आप लोग बताते रहना, ठीक है, बीच में नहीं समझ आया तो भी स्टॉप करके बोल सकते हो, मैडम ये समझ नहीं आया या जो भी है. ओके, आई एक्सपेक्ट एटलीस्ट दिस मच फ्रॉम यू, बिकॉज अभी सिचुएशंस आर नॉट गुड एंड क्या बोल सकते हैं, we have to conduct the online classes, so we have to manage with this. ठीक है, so for the time being we leave the meeting and Ma'am, it's an attendance reminder. yes Ma'am, attendance download कर ली क्या आपने? एक मिनट रुको, अभी अटेंडेंस डाउनलोड करने दो. आप लोगों का स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया ना मेरा? नहीं मैम, अभी आ रहा है. चालू है ना. अभी कैसे आ रहा है, मैंने तो बंद कर दिया. Ma'am, I wanted to share one thing with you. Yeah, please share. Who is this? Ma'am, actually, you were the one who taught me in 11th and 12th science. Is it? Who is Yes, this? ma'am. Ma'am, this is Shobita here. You were, I was in,
Oh, Yes, ma'am. Shobita, I remember your face, dear. Yeah, Urmi ma'am. Mena. I was in Urmi school and CBSE. You might be remembering. I don't know. How is it that you came here? Ma'am, this is luck all. I don't know, ma'am. Wow, good, good. Yes, ma'am. I'm so happy to And I hear. was just, I saw you for the first time. Then I was thinking, ma'am, oh yeah, you have taught me. So I was like, again, I I have think it was got an only for a opportunity. year that I was there, and then Yes, ma'am. Yes, ma'am. I remember. yeah. Okay. Attendance, I'm not able to download, maybe because this meeting was set by madam. So I think she will do it. I'm not able to do it. It's not shown also here. Just a minute. No. However, it's okay. It is recorded in the um, Teams, so it's fine. Fine then. Bye. Meet you in the next class. Okay, ma'am. Thank you. Ma'am, thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.